ठीक है, सो लीव इनकैशमेंट, सॉरी, लीव सैलरी एंड अर्नड लीव. ठीक है, सो दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट if you have any kind of leaves and you have a balance at the time of retirement, you can encash it. ठीक है, क्योंकि अर्नड लीव्स है ना, अर्नड लीव्स क्या होती है, जब आप काम करते हो और आप लीव नहीं लेते और वो आपकी एक्यूमुलेट होती चली जाती है, वो आप लीव्स नहीं लेते, आप अर्न करते चले जाते हो, बट यू डोंट टेक इट, दे रिमेन अनयूज्ड, देन इफ यू हैव अ बैलेंस यू कैन इनकैश इट. ठीक है, सो दिस इज लीव इनकैशमेंट कंसेप्ट. So treatment before retirement, fully taxable. After that, fully exempt, irrespective of the type of employment. But on retirement, on या after retirement for government, it is fully exempt, but only for central and state government employees. ठीक है, local authority या statutory corporations नहीं, only for central and state government. Then for non-government, you have to use a formula, and formula have 4 steps. आपको उन 4 steps करने के बाद लीस्ट अमाउंट लेना है. एक्चुअली कितना है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, 10 into एवरेज मंथली सैलरी, एंड या unused balance of leave into average monthly salary divided by 30. ठीक है, और एवरेज मंथली सैलरी इज सेम एज वी हैव डन व्हेन द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, so suppose there is this one case in which, as per company service rules, 35 leaves are allowed every year. These are the leaves which the employee earn every year, 35. ठीक है, उसने कंप्लीट किया है 15 years of service, so 35 into 15 is 525. ठीक है, और उसमें से यूज है 300, सो अनयूज्ड कितनी है 225. But as per IT rules, ठीक है, the maximum allowed which is used for calculation is only 30 leaves per year. ठीक है, सो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली चाहे कंपनी कितनी भी अलाउ करे, हम सिर्फ 30 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे. सो अगर 30 अलाउड है और कंप्लीटेड ईयर्स 15 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके इट इज 450, यूज 300, 150. So in this case, the unused leave will be 150. In fact, as per company service rules, it should have been 225, but as per IT rules, the maximum allowed leaves per year is only 30. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. This is in the income tax rules. Suppose अब दूसरा केस है जिसमें company is giving 25 leaves per year, and as per IT it is 30. So now you are calculating and it is coming out to be as 75 as unused leaves. So in this case you will take 75. मतलब IT rules के accordingly this is the maximum. ठीक है, this is not the minimum. So अगर minimum कुछ और है तो फिर minimum को हम ले लेंगे unused. तो आपको हमेशा जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना रिगार्डिंग लीव सैलरी, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना प्रोवाइड कर रही है. अगर वो 30 से ज्यादा प्रोवाइड कर रही है तो आपको एज पर इनकम टैक्स रूल्स 30 से कैलकुलेशन करनी है. अगर वो 30 से कम कर रही है तो जो भी कम कर रही है बस उसी के अकॉर्डिंगली कर लेना, फिर आईटी रूल्स को लाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. आईटी रूल्स तभी आएगा जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लीव्स मिल रही है वो 30 से ज्यादा है. ठीक है, average monthly salary is exactly same. Okay, so you don't have to learn this again. It is same basic salary, DA forming part of retirement benefits, and commission payable as fixed percentage of the turnover achieved by an employee. And as it is applicable to gratuity, this particular limit, the 3 lakh maximum limit, is for the entire life of the employee. So if he has claimed exemption of some amount in the previous employment, then it will be deducted from the maximum limit. Next time jab karega, so it will be deducted. Okay, so let's do this question. Mr. X, an employee of ABC Limited in Delhi, so it's a private employee, okay, getting salary of 35,000 per month. DA is 15,000 per month, out of which 6,000 per month is for retirement benefit. So this is an important information for calculating the average monthly salary. Commission is 1% on monthly sales of 5 lakh perfect. So this is also be used.
Additional commission is 1000 per month. Bonus is 1 month of salary. On 29th February 2021, he retires from the company after completing 20 years of service. So 20 years of service is the completed years of service. And he has retired on 29th Feb. So it means the entire calculation for previous year 2021 will be for 11 months. Okay, सारी calculations will be for 11 months. Then at retirement, he is given gratuity of rupees 6,75,000 and gratuity act is not applicable. तो बहुत बढ़िया है, दोनों के केस में आपको एवरेज मंथली सैलरी निकालनी पड़ेगी. The company allows him the leave of 35 days every year. So इसका मतलब it is greater than IT rules. So we will calculate as per IT rules only. 30 days के accordingly we have to calculate. And he has taken 450 leaves during the service. 450 लिया है, so हम balance निकाल लेंगे. The balance leaves are surrendered by him and the company pays him leave encashment of rupees 3 lakhs. ये actual received by him. The company has paid professional tax of rupees 2000 on his behalf. Company ने pay किया है, so this will be first added and then it will be allowed as deduction. So एक बारी तो ये plus होगा gross salary में, फिर नीचे deductions में minus होगा. Entertainment allowances of rupees 5000 per month. So ये सिर्फ add होंगे, deduction नहीं मिलेगा because the person is not government employed. Calculate his taxable salary for previous year 2021. ठीक है, so सबसे पहले हमने ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन देखी. एवरेज मंथली सैलरी कैसे होगी? बेसिक सैलरी पूरा 35,000 और 6,000 आपका डीए विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड 1% ऑफ मंथली सेल्स 5 लाख होगा 5,000. तो आपने इन तीनों को ऐड किया और आपने एवरेज मंथली सैलरी निकाल ली. ये सारी पर मंथ है, इसलिए डिवाइड बाय 10 करने की जरूरत नहीं है. दिस इज एवरेज सैलरी. ठीक है, प्रीसीडिंग 10 मंथ्स नहीं कर रहे आप, क्योंकि ये हर महीने के आपने कैलकुलेट कर लिए पहले. लीस्ट इज एग्जेम्प्टेड. 6,75,000 मिले हैं, 20 लाख इज द लिमिट एंड द फॉर्मूला इज 15/30 into average monthly salary into completed years of service. So you have applied the formula. Out of this, the limit is the least amount is 4,60,000. It means it will be exempted. ठीक है, so we are clear with the gratuity. Now leave encashment. उसका क्या है फॉर्मूला? लीव encashment के लिए एवरेज मंथली सैलरी विल रिमेन सेम, 46,000. So actually received is 3 lakh, maximum limit is 3 lakh. 10 into 46,000 is 4,60,000. Then हमारा एक फॉर्मूला आता है unused leaves. अब निकालना है unused leaves. Company as per service rule is giving 35, but as per IT it should be 30. Completed years 2020, 35 multiplied by 20 is 700, 30 multiplied by 20 is 600. Used है 450. So 250 यहाँ 150. So we'll take 150 because this is as per IT rules. This is minimum one. ठीक है, so हमेशा अपने पेपर में जरूरी भी नहीं है ये कॉलम बनाना. From the statement only you can analyze. If it is greater than 30, it means we have to do the calculation as per IT rules only. हम 30 ही assume करेंगे, चाहे 35 दे, 40 दे, 50 दे, कितनी भी दे. So unused leaves are 150 into 46,000 divided by 30. So it is coming out to be 2,30,000. So out of these, this is the lowest one. So this amount will be exempted. Clear है सबको leave encashment? Yes, ma'am. Now we'll prepare our taxable salary. Basic salary into 11, क्योंकि 11 months के लिए था, बस Feb में retire हो गया था. DA will also be for 11 months. Commission on sale is 5 lakh per month है ना, 1%. So 5 lakh into 1% for 11 months. So it's 55,000. Additional commission also he was getting 1,000. So 1,000 into 11. Bonus is 1 month of salary. So it is 35,000. Now gratuity में 6,75,000 he received, but we just calculated that the exempted value will be 4,60,000. So we'll subtract it and it will be 2,15,000. Similarly, leave encashment was 3 lakh, but we just calculated that least 2,30,000 will be exempted. So exempted under section 10(10)AA. ये बेटा याद कर लेना, ये लिखने हैं आपको. ठीक है, gratuity का 10 subsection 10 और leave encashment का 10 under subsection 10AA. So 2,30,000 you have subtracted, it is 70,000. Entertainment allowances
will be added, but it will not be allowed as deduction. Professional taxes paid by employer, it will first be added and then it will be subtracted. ठीक है, क्योंकि कंपनी पे कर रही है ऑन इट्स बिहाफ. एंड दिस इज टैक्सेबल सैलरी. आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी 50,000 की, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज द टैक्सेबल सैलरी. ठीक है, नेक्स्ट पे चलो. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. नाउ पेंशन. ठीक है, पेंशन क्या मिलती है आफ्टर द रिटायरमेंट, एंड दिस इज बेसिकली टू it is given to employer so that he can meet his day-to-day expenses after he gets retired. So these are periodical payments, these are regular payments which the employee receives every month. ठीक है, सो ये जो पेंशन होती है ना, ये आपकी रिटायरमेंट पे ड्यू होती है. तो सम पीपल कम्यूट सम पार्ट ऑफ इट. कम्यूट मतलब दे टेक लम सम अमाउंट. जैसे 30 lakhs थी, तो दे आर सेइंग कि 20 lakhs तो हमें अभी दे दो, बाकी 10 lakh यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू इन द फॉर्म ऑफ एन एन्युटी, मतलब पीरियोडिकल पेमेंट्स. वो होती है आपकी अनकम्यूटेड पेंशन. तो जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है ना कम्यूटेड पेंशन का, दिस इज एग्जेम्प्टेड. Basically, at the time of retirement, the commuted pension is exempted from tax. Uncommuted पे टैक्स लगता है, इसीलिए बहुत एम्प्लॉइज कम्यूट कर लेते हैं अपनी पेंशन को. अगर नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में दे हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. दैट इज व्हाई दे opt to take some lump sum amount from the company. So taxability. So we have understood pension are of two types. For uncommuted, it is fully taxable for government as well as for non-government. It's always taxable. इसलिए commute कर देते हैं. For government employees, it is fully exempt, and in this category, central government, state government, local authority, and statutory corporations. चारों कैटेगरी में मिलेगी. लीव इनकैशमेंट किस में थी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. बट पेंशन किस किस में है? लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में भी है. सो इन सब के लिए इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. फॉर नॉन गवर्नमेंट देयर आर सम फॉर्मूलाज. if he is receiving only pension, then it is actual amount, half of full pension. And if he is receiving pension as well as gratuity, then it is actual amount and 1/3 of full pension. फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, खाली पेंशन मिल रही है तो हाफ है, अगर ग्रेचुटी भी साथ में मिल रही है तो 1/3. ठीक है. आफ्टर, इफ यू आर गेटिंग द पेंशन आफ्टर द डेथ, देन there are some situations in which it is exempted for the family members whosoever is receiving it, but in the rest of the cases it is always taxable. But it will be taxable under the head income from other sources, because for the family members it is not a salary income, right? जिसकी सैलरी थी वो तो मर गया, तो उसकी जो फैमिली को अब मिल रही है पेंशन उसके बिहाफ पे, इट इज टैक्सेबल फॉर देम. लेकिन कुछ डिडक्शन है उसकी अलाउड, और जो टैक्सेबिलिटी है वो अराइज होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज इट्स नॉट अ सैलरी इनकम. ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या है जहां पे एग्जेम्प्टेड है? पेंशन टू विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स. सो गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? ब्रेवरी अवार्ड्स बेसिकली. परमवीर चक्र, महावीर वीर चक्र, अशोका चक्र. सो दीज आर सम ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स. सो अगर किसी को मतलब किसी गैलेंट्री अवार्ड जिस को मिला है, उसके बाद उसके फैमिली को मतलब उसके मरने के बाद जब ये अवार्ड मिले हैं तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही है इट इज एग्जेम्प्टेड. सिमिलरली पेंशन ऑफ सोल्जर हु डाई ऑन ड्यूटी, तो उसकी भी फैमिली पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड. ये सारी ना फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉय तो है नहीं. अब फैमिली मेंबर्स के लिए क्या वो पेंशन टैक्सेबल होगी? In all other cases, it is taxable, but a standard deduction of 15,000 or 1/3 of family pension, whichever is lower, is allowed. ठीक है, deduction is allowed, 15,000 या 1/3 of family pension, whichever is lower, but it is taxable under the head income from other sources. There are also few points. Pension from UNO is not chargeable to tax. Pension can be commuted even after the death and not necessarily on the death of retirement. ये हम questions करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जरूरी नहीं है जब रिटायर हो रहा है वो तभी कम्यूट करा रहा है, वो बाद में भी कम्यूट करा सकता है. ठीक है.
So let's do this question. Mr. X, an employee of ABC Limited, it's a non-government employee, retires from his services on 31st August 2020. तो 2020-21 में कितना काम किया है, कितने महीने उसने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए किया है बस उसने काम, ठीक है. बिफोर रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज 12,000 पर मंथ, ठीक है. आफ्टर रिटायरमेंट हिज पेंशन इज फिक्स्ड एट ₹6,000 per month. He has commuted 40% of his pension on the date of retirement and has received 4,32,000. तो इसने क्या है, रिटायरमेंट पे कम्यूट करा दी और कितनी कम्यूट कराई? 40%. कितनी मिली है? 4,32,000. सो अगर मैं आपको सिंपल मैथ बोलूं, अगर मुझे फुल पेंशन निकालनी है इसकी, ठीक है, फुल पेंशन तो कहीं पे गिवन नहीं है, बट हमारे फॉर्मूले में है पेंशन का. क्या है फॉर्मूला? कि अगर ही इज रिसीविंग ओनली ग्रेचुटी, हाफ ऑफ फुल पेंशन. इफ ही इज रिसीविंग ग्रेचुटी अलोंग विद पेंशन, सॉरी मैंने शायद गड़बड़ बोल दिया, if he is receiving only pension, then it is half of full pension. But if he is receiving gratuity along with pension, then it is 1/3 of full pension. तो फुल पेंशन कहाँ से लाए? जो फॉर्मूला में है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, बताओ कैसे कर सकते हैं? I'm 6,000 into 12. Yes. How will you calculate the full pension? Ma'am, 4,32,000 divided by 40%. Yes. So अगर 40% फुल पेंशन का है 4,32,000, तो फुल पेंशन कितनी होगी? 4,32,000 डिवाइड बाय 40%. यू विल गेट योर फुल पेंशन. हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपको फुल पेंशन निकालनी है, ठीक है. तो फुल पेंशन आपने जब निकाल ली 4,32,000 डिवाइड बाय 40%, so it is 10,80,000. This was the full pension, or divide by 2, ठीक है. So it will be 5,40,000. और क्या है एक्चुअल? एक्चुअल कितना है? 4,32. 4,32. So lower of this is 4,32. So the entire will be allowed as exemption, ठीक है. If he is receiving no gratuity. अगर इसी केस में if he would have been receiving gratuity, तो क्या होता? 10,80,000 को we would have divided it by 3, then it will be 3,60,000. So actual is 4,32,000 and 1/3 of full pension is 3,60,000. Now 3,60,000 is the lower amount, ठीक है. So 3,60,000 would have been given as exemption, ठीक है. सो इन दोनों केसेस में, फर्स्ट वाले केस में इतना एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, इस वाले केस में इतना. बट जो अनकम्यूटेड पोर्शन है, ठीक है, अनकम्यूटेड पोर्शन कौन सा है? जो उसको रेगुलर पेमेंट सब मिल रही है, विच इज 6,000 पर मंथ. अब टेल मी, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल अनकम्यूटेड पेंशन. सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट विल बी टैक्सेबल? 6,000 into how many months? Ma'am, 7. 7 months, right? Because for 5 months he has got his salary, and after his retirement he has started getting the periodic pension payments of ₹6,000. So 6,000 into 7 is your uncommuted pension, which is entirely taxable. So अब आपकी ये टैक्स होगी 42,000. सिर्फ जो आपका जो कम्यूटेड वाला पोर्शन था ना, उसके लिए आपने निकाली है ये लिमिट्स. अनकम्यूटेड को तो हर बार ही टैक्स करना है आपको, ठीक है. तो इसमें टैक्सेबल क्या क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर 2021 में? उसकी सैलरी फॉर 5 मंथ्स, देन उसकी अनकम्यूटेड पेंशन फॉर 7 मंथ्स, एंड देन उसकी जो कम्यूटेड पेंशन थी 4,32,000 में से फर्स्ट केस में पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और दूसरे केस में खाली 3,60,000. Just, oh my god.
इस वाले केस में गड़बड़ हो गई, सॉरी। 6000 इज द पेंशन ना, सो इसमें से हमें वो लेना पड़ेगा 60%। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि 6000 इज द अनकम्यूटेड वन। ये तो ऐसे डिसाइड हुआ है ना कि आफ्टर रिटायरमेंट इसकी पेंशन इतनी बनेगी, सो इस पेंशन को आपको दो में डिवाइड करना पड़ेगा, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। या तो ये लिखा होता कि इसकी ये अनकम्यूटेड पेंशन है, इस स्टेटमेंट के बाद ये आता कि पेंशन उसकी ये क्लेम करने के बाद 6000 बनती है, ठीक है। बट ये पहले ही डिसाइडेड है, तो इसका मतलब हमें इसका भी 60% लेना पड़ेगा, जो कि अनकम्यूटेड पोर्शन है। सो इट विल नॉट बी 42,000, इट इज 40,000 इंटू 60%, ठीक है। सो जो भी अमाउंट आएगा ना, दैट इज अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। सो इट्स 6000 into 7 into 60%, it is 25,200, and for this it is the entire 4,30,000 will be exempted, so the commuted will be nil, but uncommuted will be taxable. And in the second case, 3,60,000 will be exempted, so 4,32,000 minus 3,62,000, 72,000, and uncommuted as it is, so it is 97,200, ठीक है। हमें स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, और हमें हमेशा पेंशन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हमेशा पेंशन को ध्यान से पढ़ना कि क्या वो कम्यूटेड के बारे में कह रहा है और कितना अनकम्यूटेड के बारे में कह रहा है। क्लियर है ये? दिस क्वेश्चन इज क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? Yes, ma'am. अच्छा, नाउ see this question. Mr. A, an employee of the Haryana government, retires on 3rd January 2020 and receives rupees 12 lakh as cash equivalent of earned leave to his credit. So इसका क्या treatment होगा? जो इसका लीव इन कैश जो इसको मिला है 12 लाख, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? Ma'am, fully exempt from tax. Fully exempt. Fully exempt because he is a Yes, government ma'am. employee. So it will be fully exempt under section 10 subsection 10 AA. ये लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे आपके। Next question. Mr. A was employed in a factory in Gurgaon. He retired on 1st January 2021 after completing a service of 26 years and 5 months. सबसे पहले बात तो नीचे देख लेना, he is not covered under payment of gratuity act, इसका मतलब ये हमें पार्ट नहीं देखना, ध्यान, ठीक है। His basic salary is 23,000, DA is 2,000, forming part of retirement benefits. So पूरा का पूरा 2,000, 100% it is for retirement benefits for the last 4 years. His pension was determined as 9,000 per month, and 3/4 portion of it was commuted for 2,70,000. कितना portion? 3/4. In addition to this, he receives a gratuity of rupees 4 lakh, and as per the entitlement of 30 days earned leave for each year of service, he also received 3 lakhs for encashment of earned leaves of 12 months during previous year. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करनी है, हमें पेंशन की कैलकुलेशन करनी है, हमें लीव इनकैशमेंट की करनी है, हमें तीनों की पहले कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद हम एक प्रॉपर अपना टैक्सेबल का टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि हमें कितना उसको टैक्स पे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेजुटी, ठीक है। नाउ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज मंथली सैलरी कितनी होगी हमारी, बताओ? 25,000. 23,000 प्लस 2,000, 25,000. So average monthly salary is 25,000, ठीक है। तो ग्रेजुटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल। एक्चुअल कितना है? 4 लाख।
एक्चुअल रिसीव्ड इज 4 लाख. मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 lakhs. 20 lakhs. फॉर्मूला क्या कहता है? 15 by 30 Ma'am, into 26. 15 by 26. it's not covered. It is 15 by 30. When payment of gratuity act is applicable, then it is 15 by 26. 15 by 30 into 25 average monthly salary 25,000 into 26. into 26. कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है इसका अमाउंट. Three lakh 25,000. 3,25,000. Yes. So now you have to compare these three values. Which one is the least of? This one. So it will be exempt. Gratuity is clear. You have to apply this formula and you'll get your least value. So 3,25,000 will be exempted. Now come for pension. पेंशन में 9,000 है हमारी. 9,000 में से 3/4 पोर्शन वॉज कम्यूटेड. तो इसका मतलब 1/4 पोर्शन वॉज अनकम्यूटेड. ठीक है. तो पेंशन में अनकम्यूटेड पेंशन कितनी है आपकी? बताओ. 90,000. 9,000. 90,000. 90,000. एक सेकेंड. 9,000 divide by 4 for how many months? He retired on 1st January 2021. मतलब he must have got it for January, February and March. So into 3. This is uncommuted pension. 9,000 divided by 4 into 3 months. $9,000 divided by 4 into 3. So 6,750. ठीक है. 6,750. Now commuted pension. Commuted pension के लिए we have a formula. Actual is how much? Actual is 2,70,000. And along with pension he is also receiving gratuity. The formula will be 1/3 of full pension. अब जल्दी full pension बताओ कितनी होगी? 1/3 of full pension. Full pension कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम वही कि 3/4 पोर्शन का कितना है? 2,70,000. So 2,70,000 divide by 3/4 है ना. ये कैसे निकला होगा? 2,70,000. 3/4 portion of full pension is equals to 2,70,000. So full pension will be equal to 2,70,000 divided by 3/4. So it will be 3,60,000. 6 lakh 6 कितना? 6,80,000. 3,60,000. 3,60,000. Okay, so it is 3,60,000. उसका 1/3 कितना हुआ? 1,20,000. So 1,20,000 is the least one. Right? It is the least one. So this amount will be exempted from tax. This is about commuted pension. Uncommuted का we know that it will be chargeable to tax. Clear है सबको pension का? मैम एक बार पेंशन वाला एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. Sure. जो पेंशन का अमाउंट होता है ना, देखो यहाँ पे ही रिटायर्ड. ठीक है. ऑन 1st January 2021. इसका मतलब इसको 9 महीने की तो सैलरी मिली होगी और अब रिटायर हो गया है तो 3 महीने की इसको पेंशन मिली होगी.
ठीक है, डेट से आप मंथ्स डिसाइड कर लेते हो। अब उसकी पेंशन कितनी डिटरमिन्ड हुई है, 9,000 पर मंथ, कि अब रिटायरमेंट के बाद इसको 9,000 रुपए मिलेगी। अब उसके बाद एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो कितना पोर्शन उसका कम्यूट कराना चाहता है और कितना अनकम्यूट कराना चाहता है। हमें पता है कि कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, it is entirely fully exempted for government and non-government we know it there is a formula. ठीक है, uncommuted is always taxable irrespective whether the employee is government or non-government. तो हमने सबसे पहले अनकम्यूटेड देखा कि 9,000 में से अनकम्यूटेड कितनी है। अब इसने 3/4 पोर्शन तो कम्यूट करा लिया, इसका मतलब 1/4 पोर्शन ही बचा है जो इसका अनकम्यूटेड है। सो 9,000 का 1/4 एक महीने का आ गया और उसको इंटू 3 कर दिया फॉर 3 मंथ्स, सो इट इज 6,750। ठीक है, आपकी अनकम्यूटेड पेंशन हो गई। कम्यूटेड पेंशन मिली कितनी है उसको, 2,70,000। 2,70,000 उसको मिली है, तो एक्चुअल तो 2,70,000 है। फुल पेंशन अब हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला में है। तो अगर हमारी फुल पेंशन का 3/4 पोर्शन, सॉरी 3/4, ये पी समझना बेटा इसको, ठीक है, फुल पेंशन का अगर 3/4 हमारा 2,70,000 है तो हमारी फुल पेंशन कितनी होगी, 2.7 lakhs डिवाइड बाय 3/4, राइट। फुल पेंशन को मल्टीप्लाई करके ये निकला ना कम्यूटेड अमाउंट, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे आपको फुल पेंशन मिल जाएगी। तो फुल पेंशन आ गई 3,60,000। अब आपको ये डिसाइड करना है डिवाइड बाय 3 होगा या डिवाइड बाय 2 होगा। अब इस क्वेश्चन में उसको ग्रेचुइटी भी मिल रही है अलोंग विद पेंशन, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। अगर खाली पेंशन मिल रही होती तो ये डिवाइड होता 2 से। अब 3 से डिवाइड किया तो इट इज 1,20,000। इन दोनों का लीस्ट इज 1,20,000, तो 1,20,000 की उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब लीव के ऊपर आ जाते हैं। सो लीव उसको मिल रही है एज पर एंटाइटलमेंट ऑफ 30 days अर्न लीव फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। He has received 3 lakh for encashment of earned leave of 12 months. ये क्या बोल रहा है कि उसकी अनयूज्ड लीव कितनी है, 12 months। अब जो लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है, एक्चुअल अमाउंट। सो एक्चुअल अमाउंट कितना है, 3 लाख। ठीक है, हम लीव इनकैशमेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 लाख। उसके बाद क्या है, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। सो एवरेज मंथली सैलरी कितनी है, 25,000, राइट। सेम ही रहेगी, ग्रेजुएटी में जो होती है वही लीव इनकैशमेंट में होती है। सो इट इज 2.5 लाख। फिर आया लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला। लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अनयूज्ड लीव्स डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी। अब इसमें एक चीज बताओ मुझे, फॉर्मूले में ही क्या होता है, अनयूज्ड लीव्स डिवाइड बाय 30। ये क्यों करते हैं हम, जो भी लीव्स है डिवाइड बाय 30, हम पता है क्यों करते हैं, हम इससे मंथ्स निकालते हैं कि जितनी भी लीव्स है, सपोज 300 लीव्स है तो एक महीने में हम अज्यूम करते हैं 30 दिन होंगे। तो जब उसको डिवाइड करते हैं ना तो हमें मंथ में मिल जाती है और फिर उस मंथ से हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज मंथली सैलरी। अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना लीव इनकैशमेंट का, तो वो फॉर्मूला कहते हैं अनयूज्ड लीव्स डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। सो उस 30 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, उस 30 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हम इस पोर्शन को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इनटू एवरेज मंथली सैलरी जो भी होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में अगर आप देखोगे ना उसको 30 डेज मिल रहे हैं अर्नड लीव, which is very much in limit in IT rules. IT rules भी 30 देता है, कंपनी भी 30 दे रही है। इसका मतलब अलग से तो 2 कैलकुलेशन तो हमें करनी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब जब सीधा सीधा हमें 12 मंथ दी हुई है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो ना अनयूज सैलरी को। अनयूज्ड वो सब निकालने की, क्योंकि अनयूज्ड इसने सीधा मंथ में ही दिया हुआ है। क्या होता है क्वेश्चंस में ना, मंथ में नहीं दिया जाता,
डेज में दिया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो अनयूज डेज होते हैं डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी करते हैं, या क्वेश्चन में सीधा सीधा मंथ्स दिया हुआ है, तो जब मंथ दिया हुआ है तो सीधा मल्टीप्लाई करो, मैम, या 12 इंटू 25,000. यस Ma'am, I lost my connection. Can you please repeat? जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर लीव इनकैशमेंट का फोर्थ जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनयूज्ड लीव बैलेंस डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, ये हमारा फॉर्मूला होता है फोर्थ. ठीक है, आई शो यू. दिस, सो आई एम सेइंग जो ये अनयूज्ड लीव होती है इसको 30 से क्यों डिवाइड करते हैं, इसको इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हम ये जो भी जितना भी बैलेंस होता है इसको पर मंथ बैलेंस बताते हैं. जैसे सपोज 400 लीव्स का बैलेंस बचा है हमारा टोटल टेन्योर में, उसको डिवाइड बाय 30 कर दो तो हमें आ जाएगा कितने मंथ का बचता है. हम इस फिगर को एक्चुअल में मंथ में कैलकुलेट करते हैं और तभी हम एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मंथ को मल्टीप्लाई करोगे ना. तो यूजुअली हमारे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डेज होता है, तो जब भी डेज होता है ना हम क्या करते हैं अनयूज्ड डेज निकालते हैं, डिवाइड बाय 30 करते हैं और इनटू एवरेज मंथली सैलरी कर देते हैं. तो हम इन शॉर्ट इसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं अनयूज्ड बैलेंस को. इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मंथ में ही अनयूज्ड बैलेंस गिवन है, तो इसका मतलब कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दो. इसमें ना इसने लिखा है कि अर्न लीव ऑफ 12 मंथ्स, ये नहीं बोला है कि ये इसने इतनी ले ली है कि बचा कितना है. बचा हमें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 महीने की अर्न लीव पे इसको 3 लाख लीव इनकैशमेंट मिल गया. इसका मतलब सीधा सीधा हमें अनयूज्ड लीव्स डिवाइड बाय 30 की वैल्यू दे दी है 12 मंथ्स. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 12 इंटू 25,000. ठीक है, तो क्या अमाउंट आएगा आपका 3 lakh. 3 लाख. तो इस चारों फिगर्स में से सबसे छोटी कौन सी है 2,50,000. सो दिस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लीव इनकैशमेंट. अब हमने तीनों की एग्जेम्पशन निकाल ली, बस अब हमें अपना क्वेश्चन करना है. तो लीव इनकैशमेंट की हो गई 2,50,000, अनकम्यूटेड पूरा होगा 6,750 इंटू 3 मंथ्स है ना, और इसकी हो गई हमारी 1,20,000 एग्जेम्प्टेड, और ग्रेचुइटी की हो गई हमारी 3,25,000. तो बेसिक सैलरी आ गई आपकी 23,000 इंटू 9, डीए भी आ गया आपका 9, अनकम्यूटेड आपकी पूरी चार्जेबल टू टैक्स है, कम्यूटेड जितनी मिली थी उसमें से 1,20,000 एग्जेम्प्ट कर दिया, सो आपकी टोटल 1,56,750 होगी आपकी जो पेंशन है. ग्रेचुइटी 4 लाख मिली थी बट एग्जेम्प्टेड 3,25,000 होगी, तो आपका नेट आ गया 75,000. लीव इनकैशमेंट 3 लाख मिली थी और 2,50,000 आपका एग्जेम्प्ट हो गया, तो 50,000 आपकी 50,000 आपका नेट बचा. फिर आपने इन सबको ऐड कर दिया, ग्रॉस सैलरी आ गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगी मिलेगी, सिंस ही वाज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिले और प्रोफेशनल टैक्स उसने कुछ पे नहीं किया था, तो बस 50,000 की डिडक्शन, ये आपका आंसर. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कुछ और पूछना है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. Any doubts to anyone? These type of questions you can expect in your exam. छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ग्रेजुइटी भी होगा, जिसमें पेंशन भी होगा, जिसमें लीव इनकैशमेंट भी होगा, और हो सकता है पीएफ भी हो, जो हम आगे जाके करेंगे. ठीक है, तो एक ही सैलरी का बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, उसमें सारी चीजें होती हैं आपकी, सबकी कैलकुलेशन करनी होती है आपको. चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. A joined a service in the grade of 10,400, then 400 increase every month.
every year, sorry, 16,000, then 500 increase every year, then 20,000 on 1st July 2004. And he resigned from the service on 15 September 2020. Now tell me, इसकी जो सैलरी कैलकुलेशन होगी, बेसिक सैलरी, वो कितने महीने की होगी? कितने महीने के लिए होगी? 3 months, ma'am. क्या 3 months? 3 months. How come 3 months? No, ma'am. वो 7 ज्वाइन किया है. Sorry, ma'am. हाँ. It will be 5.5 months. Full April, May, June, July, August और September का half. So 5.5 months तक he was a salaried person. He was getting the Ma'am, basic salary, everything. डेट Yes. में प्रॉब्लम दिया है. 2004 दिया है. 1st July 2004 और यहाँ 2020. Joining given है, joining. Resigned देख रहे हैं ना हम. He resigned from the service on 15 September 2020. So I'm talking about previous year 2021. 2021 की बात हो रही है. So उस केस में कितने महीने के लिए he was employed? 5.5 में. 5.5 and बाकी बचे हुए he was on retirement. He must be getting some pension and all. तो बाकी कितना हुआ आपका? 6.5 बचा हुआ. He was also entitled to DA at the rate of 50%, which forms part of salary for retirement benefits. So 50% of basic salary is DA and the entire 100% of it is for retirement benefits. On retirement, he received a gratuity of rupees 2,40,000. He was entitled to pension of rupees 8,000 per month with effect from 16 September 2020. He got 75% of his pension commuted with effect from 1st January 2021 and he received a sum of rupees 6,000 as commuted pension. Now tell me, he was retired on 15 September 2020 and now he's commuting his pension on 1st January. So जब पेंशन करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे क्योंकि डेट्स आर डिफरेंट. बोल रहे थे ना कि कम्यूटेड जरूरी नहीं है कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही हो, बाद में भी हो सकती है. तो इसने बाद में करी है और इसको कितना मिला है? 6 लाख रुपीज. वी हैव टू कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी इनकम. अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारी आज की डेट में बेसिक सैलरी है कितनी, क्योंकि 1 जुलाई 2004 को इट वाज 10,400 और उसके बाद वो हर साल 400 बढ़ती गई है. तो उसका एक शॉर्टकट है. आप सबसे पहले लिखिए 1 जुलाई 2004 से लेकर 30th जून 2005 तक इट विल रिमेन एज 10,400. पूरे एक साल के लिए 10,400 है. फ्रॉम 1 जुलाई 2004 से उससे पूरे एक साल के लिए, तो इट विल एक्सपायर ऑन 30th जून 2005. अब हमें कैलकुलेट करना है कितने साल लगेंगे कि उसकी सैलरी 16,000 बन जाएगी. ये वाला नेक्स्ट उसका जो स्लैब है. तो 16,000 minus 10,400 divide by 400 because the gap is 400. So it is 14 years. अब सीधा सीधा आप क्या करोगे? इस 2005 में 13 years ऐड करोगे क्योंकि 14 से तो मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना. 14th ईयर से तो इट विल बी एप्लीकेबल. सो आपने इसमें 13 ऐड किया. 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक इट विल बी 16,000. आपको हर साल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप हर पूरा 14-15 साल कैलकुलेट करो. आपने क्या किया? आपको पता है जिस साल उसने ज्वाइन किया उस पूरे एक साल तक his salary will be 10,400. उसके बाद बढ़नी शुरू होगी हर साल 400. तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कितने सालों में उसकी 16,000 बैठेगी. सो हमने क्या किया? 16,000 माइनस 10,400 डिवाइड बाय 400, क्योंकि गैप क्या है? 400 हर साल बढ़ने का.
14 years. सो अब यहाँ से हमें सीधा 14th ईयर पे जंप करना है. 14th ईयर पे जंप करना है तो हम ऐड कितने करेंगे? 13 इयर्स बीच में, क्योंकि 14th से तो ये 16,000 एप्लीकेबल हो जाएगी. सो हमने जब 13 ऐड करे तो इट हैज बिकम 1st जुलाई 2018. 5 से हमने 13 ऐड करे, इट बिकम्स 1st जुलाई 2018 टू 30th जून 2019. So it is 16,000. फिर अगले साल it would be 16,500 क्योंकि now the gap is 500. So it is 16,500 and from 1st July 2020 से 30th June 2021 it will be 17,000. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पर्पस था is to calculate the basic salary because it is not given in the question. Instead grade pays are given. तो आपको सबसे पहले अपने लिए बेसिक सैलरी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि उसी से फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. ठीक है, अब हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई. हमारी प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च 21 तक. तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2020 से 30th जून 2020 30th जून 2020 तक उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 16,500. इसी से मैं निकाल रही हूँ. 1 अप्रैल से शुरू हुआ है मेरा साल और 30th जून तक मेरी सैलरी है 16,500 और 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च तक मेरी सैलरी है 17,000. ये सारी मेरी वर्किंग्स है. अभी तक मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ वर्किंग्स करी अपनी. सॉरी, गलती करती है यहाँ पे 31 मार्च. ठीक है, सो इट इज नाउ 17,000. सो मतलब प्रीवियस ईयर में अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए मेरी सैलरी थी 16,500 और बाकी 9 मंथ्स के लिए थी मेरी सैलरी 17,000. ये मेरा अब असर्टेन हो चुका है. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है. क्वेश्चन सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेचुइटी का. ग्रेचुइटी का सबसे पहले ये देखो, gratuity act is applicable or is not applicable. It is not written. ठीक है, so it is not applicable क्योंकि salary for retirement benefits वगैरह दिया हुआ है ना. ठीक है, मैं इसमें लिख दूंगी it is not applicable. ठीक है, तो gratuity के लिए just a minute. ठीक है, gratuity का actual कितना है? एक्चुअल है 2,40,000. 2,40,000 उसको मिले हैं ना. मैक्सिमम है 20 लाख. फॉर्मूला इज 15/30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी. सो एवरेज मंथली सैलरी क्या होती है आपकी? प्रीवियस 10 मंथ्स. अब निकालो पिछले 10 महीने की. सो he has retired on 15th September 2020. तो बेसिकली हमें निकालनी है इसकी अगस्त की. ठीक है, अगस्त, फिर अगस्त की, जुलाई, जून, देन इट विल बी मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी. देखना कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जनवरी, देन दिसंबर, नवंबर. तो नवंबर तक आपको इसकी 10 महीने की सैलरी लिखनी पड़ेगी क्योंकि चेंज हो रहा है ना ये. ठीक है, तो यहां से देखो अगस्त में कितनी थी इसकी सैलरी? 17,000. जुलाई में कितनी थी? 17,000. जून से कितनी है? 16,500. सो ये 16,500 है टिल नवंबर तक. नवंबर में कितनी है? ये होगा नवंबर 2019. सो फ्रॉम 1 जुलाई इट विल बी 16,500. ठीक है, आपकी आ गई पुराने 10 महीने की सैलरी. अब इसमें आप 50% ऐड करते रहो डीए.
हर एक में 50% ऐड करते रहो, डीए आपका अमाउंट आएगा, उसके बाद यू हैव टू ऐड इट and then you have to divide it by 10. This way you will calculate the average monthly salary. ये कंसेप्ट क्लियर है? मैं सॉल्यूशन दिखा दूं, ये क्लियर है हमने कैसे किया है? एवरेज मंथली सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स and commission given as fixed percentage on the turnover achieved by the employee. कमीशन इसमें गिवन है नहीं, तो हमें खाली बेसिक सैलरी और डीए करना है. डीए हमारा पूरा का पूरा बेसिक सैलरी पे डिपेंडेंट है 50%, तो जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% होगा. और ये जो है ये आपका ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली हमने निकाला है. ठीक है, सो इफ यू सी 17,000 विल बी फॉर 2 months, है ना, इट विल बी फॉर 2 months and 16,500 will be for 8 months. इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 करके आ गया आपका 16,600 और इसका 50% इज 8,300, दोनों को ऐड किया 24,900. ऐसे कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, आपको कैसे टाइम सेविंग लगता है. ठीक है, आपने ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा एवरेज बेसिक सैलरी निकाल के उसका 50% करके दोनों को ऐड कर दिया, या फिर आप उसी लेवल पे ही बेसिक सैलरी के साथ ही दिए कर सकते हो. तो आपकी एवरेज सैलरी आ गई 24,900. सो इट इज 24,900. नाउ एक और काम है आपका, आपको कैलकुलेट करना है कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस. अब कैलकुलेट करो कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस कितनी है. 2004 से शुरू किया था ना इसने, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जुलाई 20 तक, क्योंकि सितंबर में हो गया तो पार्ट तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे, तो टोटल 16 साल. For 16 years he was in complete service. ठीक है, so it will be into 16. ठीक है, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1,99,200 will be the lowest of these amounts, 2,40,000, 20 lakhs and this, so it will be allowed as exemption. So 2,40,000 minus 1,99,200, this is your answer. सबको क्लियर है ग्रेचुइटी का? बाकी ट्रीटमेंट बताऊं, ग्रेचुइटी क्लियर है सबको? देखो क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट इज लिटिल बिट लेंथी. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी. यस नो प्लीज. मैम बेसिक सैलरी में ये सॉल्यूशन में अभी दिखा कराऊंगी बेटा, अभी कराऊंगी. इट इज ओनली अबाउट ग्रेचुइटी. अभी ग्रेचुइटी कराया ना, तो सिर्फ ग्रेचुइटी दिखा रही हूँ, सिर्फ ग्रेचुइटी का मैं पूछ रही हूँ, बाकी अभी मैं कराऊंगी. ग्रेचुइटी क्लियर है सबको? यस मैम. मैम एक बार एवरेज सैलरी बता. ओके, बेसिक सैलरी, एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन देखना था बस. बेटा यहाँ पे किया था ना हमने, यही वाला है. पिछले 10 महीने का देखा हमने कि क्या क्या बैठ रहा था. 2 महीने तो थी उसकी 17,000, बाकी 8 महीने थी इसकी 16,500. सिर्फ 10 महीने का ही देखना है कैलकुलेशन में. एवरेज मंथली सैलरीज फॉर द प्रीसीडिंग 10 months, दिस इज इन द फॉर्मूला. आपने ये निकाला, आपने सबको ऐड किया, 17,000 को 2 बारी और 16,500 को 8 बारी मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया, आपका आ गया एवरेज मंथली सैलरी फॉर 10 months. फिर उसको आपने क्या किया, डिवाइड बाय 10. जैसे आपकी एक महीने की एवरेज मंथली एवरेज बेसिक सैलरी आ गई आपकी एक महीने की, राइट. पहले 10 से 10 मंथ का ऐड किया, उसके बाद डिवाइड बाय 10 करके एक महीने की निकाली है. डीए लिखा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, सो इसका सीधा 50% कर दिया 16,600 का, विच इज 8,300. फिर इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि यही है ना एवरेज मंथली सैलरी कि बेसिक सैलरी, डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन. अब इसमें कमीशन नहीं था तो नहीं ऐड किया.
ठीक है, ये क्लियर है ना? चलो अब आते हैं हम पेंशन पे। पेंशन क्या है इसकी कि इसने ये सितंबर में ही रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर और इसने कम्यूटेड किया है 1 जनवरी 2021। इसका मतलब इससे पहले तक पूरी वाज अनकम्यूटेड। इसका मतलब जो इसकी पेंशन थी 8,000, ध्यान से देखना, 8,000 इसकी रिटायरमेंट पे डिसाइड हुई है पेंशन। कितने महीने इसने पूरी ली है? आधा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। इसका मतलब 3.5 मंथ्स के लिए ये पूरी 8,000 टैक्सेबल है बिकॉज उसने कम्यूट नहीं कराई है, अनकम्यूटेड है। कम्यूट उसने 1 जनवरी को कराई है, तो 3.5 मंथ्स तक पूरा 8,000 टैक्सेबल है। उसके बाद जनवरी से क्या किया इसने, 75% कम्यूट करा ली। 75% कम्यूट करा ली तो 8,000 का कितना बचा? 25%। 25% बचा ना बस अनकम्यूटेड सॉरी, इनटू कितने महीने? Yes, ma'am. फॉर 3 months, फॉर जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। ठीक है, ये है आपकी अनकम्यूटेड पेंशन विच इज फुल्ली टैक्सेबल। तो उसने जब तक नहीं कराई थी, जब तक पूरी 8,000 टैक्सेबल हुई है, जब से उसने कराई है जब फिर वही पोर्शन टैक्सेबल हुआ है जो अनकम्यूटेड है। अब इसको ऐड मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, यू विल गेट दिस अमाउंट 34,000। 8,000 for full 3.5 months and then 8,000 का 25% is 2,000 into 3, you will get 34,000. This is uncommuted pension. अब कैलकुलेशन है कम्यूटेड की। कम्यूटेड मिला कितना है? 6 लाख। सिंस ही वॉज रिसीविंग ग्रेचुइटी तो 1/3 होगा। फुल पेंशन कितनी होगी आपकी? 6 लाख डिवाइड बाय 75%, so it will be 8 lakhs. 6 lakh divided by 75%, 8 lakhs. 8 lakh divided by 3, so this is the amount, so this will be allowed as exemption. क्लियर है सबको? ये 6,000 जो मिला था उसमें से ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो गया, so it is 3,67,333.33. नेक्स्ट कैलकुलेशन बताऊं अब? पेंशन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज, और हमें लीव है ही नहीं इसमें, परफेक्ट, लीव का कुछ है ही नहीं, तो अब हमें बस बेसिक सैलरी और डीए को चार्ज करना है। अब बेसिक सैलरी हमारी कितने महीने की थी? 5.5 महीने की हमें कैलकुलेट करनी है बस, क्योंकि उसके बाद तो रिटायर हो गया। 5.5 महीने में हमारे कौन कौन से महीने आते हैं? अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीने की सैलरी कितनी थी? 6,500। बाकी बचे हुए 2.5 महीने की कितनी सैलरी है, जिसमें आ रहा है जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर। बचे हुए 2.5 महीने के 17,000। So 16,500 for 3 months, 17,500 for 2.5 महीने। इसमें 15/30 इसको नंबर ऑफ डेज में कर लिया, वैसे मैं 2.5 बोल रही हूँ, ठीक है, 2.5 है। 15/30 is 0.5. So basic salary is 92,000 or DA is very easy, it is just 50% of it, so it is 46,000. So you will add all of these, then you'll give a standard deduction of 50,000. You'll get your answer. This is the taxable salary. Clear? क्लियर है सबको? आपको महीने से यहाँ पे इस, जब आप ग्रेड पे बना लोगे इसके बाद आपको देखने पड़ेंगे आपके प्रीवियस ईयर के महीने किस ग्रेड पे में लाइक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको बेसिक सैलरी उठानी पड़ेगी। Shall I move to next question? क्लियर है सबको ये? I'll share my PPT, don't worry, you can refer. घर पे एक बार आप चेक कर सकते हो। Yes, ma'am. This is your 4th question.
X was employed with ABC Limited. He retired with effect from 1st February 2021. So इसका मतलब 10 महीने के लिए he was in service और 2 महीने के लिए he was on pension, अगर पेंशन होगी तो, ठीक है। 10 महीने के लिए ही वो एम्प्लॉयमेंट पे था। कंप्लीटेड सर्विस ऑफ 24 years, पेमेंट नहीं है कवर्ड, तो फिर 4 months हम नहीं देखेंगे, ओनली 24 months कंप्लीटेड ईयर्स देखने हमें। He submits the following information. Basic salary 25,000 per month, ठीक है। DA is 100% of basic salary और out of that 40% is forming part for retirement. Perfect. Last increment हुआ था उसका 2,500 का with effect from 1st July 2020. अब इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है at the time of retirement 25,000 थी। रिटायरमेंट कब हुई है उसकी? 1st February को। इसका मतलब जनवरी, उससे 1 महीने पहले तक उसकी सैलरी कितनी थी? 25,000। और उसका, इसको 25,000 समझ लेना प्लीज। उसके बाद उसका लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है जुलाई में, ठीक है, जुलाई में हुआ है। और कितने बढ़े हैं पैसे उसके? 2500। तो जुलाई तक 25,000 ही थी, क्योंकि जुलाई से क्या हुआ, बढ़ गई उसकी सैलरी, और जितनी भी बढ़ी थी वही रिटायरमेंट पे थी। इसका मतलब इससे पहले पहले इट वॉज 22,500, तभी तो जुलाई में उसकी 2500 रुपए बढ़े, जिससे उसकी सैलरी हो गई 25,000, है ना। इससे पहले तक ऐसे ही होगा ना, तभी तो लास्ट इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका जुलाई 2020 में वो 2,500 रुपए का हुआ है। जो उसके बाद जो जुलाई से चलता आया होगा वो 25,000 ही चलता आया होगा, जो उसकी रिटायरमेंट पे सैलरी थी, है ना। तो जुलाई से पहले उसकी सैलरी होगी 22,500। अब हमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ना एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है पिछले 10 महीनों की, इसलिए हमारे लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है। His pension was determined at 15,000 per month. He got 50% of the pension commuted on 1st March. 1 महीने बाद उसने commute कराई है, and received a sum of rupees 5 lakh as commuted pension. In addition to this, he received a gratuity of rupees 6 lakh and leave encashment amounting to rupees 2,80,000 on account of accumulated leaves of 240 days. 240 days लीव है and he was entitled to 40 days of leave every year. ये गलत है, तो इसका मतलब हमें अब इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज पर 30। और पता है ये ना बैलेंस है, ये नहीं है कि यूज कितना है, ये है बैलेंस। तो सबसे पहले बैलेंस से हम निकालेंगे यूज, और फिर उस यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने आईटी के में। अभी देखना इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी। ये क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? ये क्वेश्चन है एक्सेल में। यस मैम। सबसे पहले लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुइटी। ठीक है, ग्रेचुइटी के लिए लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स साइज। ग्रेचुइटी के लिए हमें एग्जेम्पशन निकालना है, तो मिली कितनी है? 6 लाख मिली है, 6 लाख। मैक्सिमम है 20 लाख। फॉर्मूला कहता है हमारा 15/30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, जो है हमारी 24 years इंटू एवरेज मंथली सैलरी। अब एवरेज मंथली सैलरी निकालते हैं, ठीक है। सो रिटायर हुआ है ये फेब में, तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून में कितना हुआ है? अप्रैल। ठीक है, ये हो गए हमारे पुराने पिछले 10 महीने, क्योंकि फेब में रिटायर हुए ना 1st फेब को, तो इससे पुराने ये हो गए। और इसकी रिटायरमेंट जो थी वो हुई है 25,000 पे। 25,000 है ये टिल जुलाई, क्योंकि जुलाई में बढ़े हैं इसके पैसे, 25 हुए हैं, इससे पहले थे 2,500 कम,
सो 22,500। ठीक है, ये हमारी पिछले 10 महीने की सैलरी आ गई। इसके बाद है डीए। डीए इज 100% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी इसी का ही है। इट इज 25,000 और इसमें से 40% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इसका मतलब ये हमारा डीए हो गया। 25,000 मतलब पूरा 1 मंथ का ही जो बेसिक सैलरी है वही डीए, तो ये हो गया 25,000 और डीए फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इट इज 40%। तो मैंने 40% से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सेम बेसिक सैलरी को। ठीक है, ये हो गया हमारा डीए। कमीशन हमें कहीं पे दिया नहीं है। ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू ऐड इट नाउ। दिस प्लस दिस पूरा मैंने ऐड कर लिया, सैलरी और डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फिर मैंने इन सबको भी ऐड कर लिया, मैंने फिर कर दिया डिवाइड बाय 10। सो 33,950 इज माय एवरेज मंथली सैलरी। एक बार चेक भी कर लेते हैं। इट इज 33,950, इट इज मैचिंग। ठीक है, 33,950 हो गई हमारी एवरेज मंथली सैलरी। हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी कैलकुलेशन में, 33,950। सो हमारा अमाउंट आ गया ग्रेचुइटी का। दिस विल बी एग्जेम्प्टेड। 4,07,400 will be exempted. This will be exempted from 6 lakhs. So this is 1,92,600. ग्रेचुइटी की सबको क्लियर है कैलकुलेशन? Yes, ma'am. नेक्स्ट चलते हैं पेंशन। ठीक है, पेंशन कितनी है? 15,000 रुपए पेंशन है हमारी, 15,000 रुपए। एंड ही रिटायर्ड, पहले सबसे पहले अनकम्यूटेड ही निकालेंगे ना, अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। ठीक है, सो अनकम्यूटेड 1 फेब से उसे मिलने लगी होगी, लेकिन 1 मार्च को उसने उसको कम्यूट कराया है। तो इसका मतलब 1 महीने के लिए तो पूरी 15,000। ठीक है, क्योंकि 1 महीने तो उसने कराया नहीं। बाकी जो बचा हुआ मार्च वाला 1 ही महीना बचता है, उसकी 50% वॉज अनकम्यूटेड, क्योंकि 50% कम्यूट करा ली थी। तो इसकी 50% है ना, डिवाइड बाय 2। So it will be 22,500. क्लियर है? बचे वैसे भी कितने बचे थे? 2 महीने ही तो बचे थे, है ना। जनवरी में वो रिटायर हुआ था, तो खाली फेब्रुअरी और मार्च का हमें निकालना था हमारे प्रीवियस ईयर में। फेब्रुअरी में इसने पूरी 15,000 उठाई है, मार्च में इसने इनिशियल में उसको कम्यूट करा लिया है, तो उसका 50% बस। 1 महीने का 50%, एक का पूरा 15,000। क्लियर है सबको अनकम्यूटेड वाला पोर्शन? Yes, ma'am. अब आते हैं कम्यूटेड पे। कम्यूटेड मिली कितनी है इसको देखो। he received 5 lakh और he is also receiving gratuity, so it will be 1/3 of full pension. full pension कितनी है आपकी? 5 lakh divide by 50%, so it is 5 lakh divide by 50%. this is your full pension, so 1/3 of that. So 3,33,333 is the least amount, so it will be exempted. So ये दोनों amount आपके chargeable to tax. So when you see pension, the whole uncommuted pension is taxable 22,500, and this 333 will be exempted. So in दोनों का sum 3,55,833. Sorry, no, we don't have to add it. We subtract this. So this and this 1,89,166.667, this will be charged to tax. ये हमारी exempted है ना, इसको subtract कर लेंगे हम actual received में से। ये हमारा exempted है, so हमने exempt किया, so this will be chargeable to tax. Clear है सबको pension वाला?
क्लियर है? Yes, लीव ma'am. वाला कटा हुआ? ओके, सो नाउ सी फॉर लीव। लीव इनकैशमेंट मिला इतना है, ठीक है। सबसे पहले हम देंगे कि इसका बनता कितना है, ठीक है। एज पर कंपनी सर्विस रूल, एज पर आईटी रूल, ठीक है। इसको इस पे मिला है 40 डेज, आईटी कहती है 30 डेज। कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस है इसकी 24, यहाँ पे भी 24। सो टोटल नंबर ऑफ लीव्स विल बी 40 into 24 एंड इट विल बी 30 into 24। अब आता है यूज्ड लीव्स। अब इस क्वेश्चन में क्या यूज्ड लीव्स गिवन है? यहाँ तो ये लिखा है कि लीव इनकैशमेंट मिला है 2,80,000 का ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव्स, तो ये तो हमारा बैलेंस गिवन है। इसका मतलब यूज्ड लीव्स हमें गिवन ही नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट करनी है हम। और जो हमारा बैलेंस है वो गिवन है हमें कितना, 240 डेज का। So when you subtract 960, when you subtract 240 from 960, you will get the used leaves. Clear है सबको ये? इसमें used नहीं given है, इसमें balance given है। So हमने used leaves निकाल ली। अब जब हमें पता है used leaves हैं, तो 720 अगर हम इसको सेम करेंगे, क्योंकि यूज तो यूज्ड ही है ना, इसने यूज कर ली ना, तो आईटीआर के हिसाब से तो इसका कोई लीव बैलेंस ही नहीं बचता इस पर्सन का। कंपनी तो 40 दे रही थी, आईटीआर कहता है हम आईटी रूल कहता है हम तो 40 नहीं देते, 30 देते हैं। हमें यूज्ड पता नहीं था उसने कितनी करी है। अनयूज्ड बैलेंस हमें गिवन है कि 240 स्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग, इसलिए उसको 2,80,000 उसको लीव इन कैशमेंट मिला है। बट जब मैंने आईटी के हिसाब से कैलकुलेट किया तो इसका कोई लीव बैलेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा लीव इन कैशमेंट एक्चुअल कितना है, इस 2.8, मैक्सिमम कितना है 3, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी हमने ग्रेचुइटी में कैलकुलेट करी है, कितनी है वो, इट इज 33,950। इट विल बी, मैं आ रही हूँ 2 मिनट, ठीक है। सो इट विल बी 10 इंटू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या है, unused leaves, which is 0. So you can divide anything with 0, multiply with anything, it will be 0. So out of this least is 0. So nothing will be exempted. The entire 2,80,000 will be charged to tax. So in this case, the entire will be charged to tax. Clear है सबको लीव इनकैशमेंट? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, ये यूज्ड बोल रहा है या ये अनयूज्ड बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है अनयूज्ड बोल रहा है, सीधा उसी को 240 मान के चल देते हैं। यहाँ सॉरी ये हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था, ये अनयूज्ड था, बच्चे इसी को अनयूज्ड ले लेते हैं। हमने यूज्ड करके आईटी का रूल लगा के तो देखा ही नहीं कि एक्चुअल में आईटी के हिसाब से अनयूज्ड कितना था, बच्चे इसी को 240 ले लेते हैं। ये देखते ही नहीं है कि वो 40 जो है वो आईटी रूल से ज्यादा है, ठीक है। एक बारी बेसिक सैलरी और डी और देख लेते हैं। हमारी बेसिक सैलरी हमने बनाई थी ना अपनी, तो इसकी बेसिक सैलरी पिछले 10 महीने की बैठेगी, सो इट विल बी दिस ओनली, ठीक है। जुलाई से बढ़ गई थी, सो जुलाई से जनवरी इतना ही, रिटायर्ड ऑन फेब्रुवरी ना, जनवरी तक पे करना ही है। सो जनवरी से लेकर जुलाई तक 25 और बाकी 3 महीने की 22,500। अप्रैल से शुरू होगा आपका महीना, सो इट विल बी 2,42,500 ओनली। और इसका 100% इज डीए, डीए लिखा हुआ, इट इज 100%, इट इज फुल बेसिक सैलरी। जो ये 40% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है, दिस इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे तो जितना डीए मिल रहा है पूरा का पूरा ही आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am.